إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے اس ساری دنیا کو پیدا کیا، زمین و آسمان کی بادشاہت صرف اسی کے قبضے میں ہے۔ بدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے سبھی انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم جو ہے سنا مخارج مکمل پڑھ چکے ہیں، مکمل مخارج ہم پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج آپ کی پریکٹس کلاس ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ تمام حروف ہجا ہم آپ کو پڑھائیں گے، لرن کروائیں گے اور آپ لرن کریں گے انشاءاللہ۔ تو کچھ سوالات کرتے ہوئے میں انشاءاللہ آگے بڑھوں گی۔ سسٹر عائشہ، آپ لاسٹ کلاس میں تھے؟ سسٹر عائشہ، سسٹر عائشہ، آواز آ رہی ہے سسٹر عائشہ کو میری؟ عائشہ میری آواز آ رہی ہے اب؟ آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی۔ ہیلو ہیلو، آواز آ رہی ہے عائشہ میری؟ ٹھیک، کوئی دوسرے پڑھ لیجیے۔ سسٹر عائشہ صدیقہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میم۔ ہاں، تجوید کے معنی بتائیے۔ تجوید معنی مخرج و صفات اور تلاوت کے لحاظ کرتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھنا ہے میم۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ اور تجوید کا مطلب ڈکشنریکل میننگ بتائیے۔ ڈکشنریکل میننگس ان دا سینس سیٹ آف رولس رہتے نا میم، جو ہمیں پرٹیکولرلی ایک پروناؤنسیشن، ہر لیٹر کا پروناؤنسیشن ایگزیکٹ پروناؤنسیشن کے ساتھ پڑھنا ہے میم۔ نہیں، ورڈ ٹو ورڈ جو میننگ ہم بتائے تھے وہ میننگ بولیے۔ میم سمجھ میں نہیں ہے۔ اچھا کرنا، عمدہ کرنا۔ میم عمدہ کرنا، عمدہ، ٹھیک ہے عمدہ، اوکے اوکے میم، سوری۔ ہاں جی، عمدہ کرنا، ٹھیک ہے میم۔ حلق کے کتنے حصے ہیں؟ حلق کے 3 حصے ہیں میم، ادنائی الحلق، وسط الحلق، اقصائی الحلق۔ جی، حلق کے اقصائے حلق کے کتنے حروف ہیں؟ اقصائی الحلق کے 2 حروف ہیں میم، جی، حمزہ خا۔ حمزہ ہ، حمزہ خا، حمزہ ہ،
जी हमजा हा, ओके। और अदनाए हलक के अदनाइल हलक के गैन खा। ओके ठीक है। जी मैम। और ठीक है, आपके लिए बस है। सिस्टर महबूब हुसैन कौन है? थे आप लास्ट क्लास में? सिस्टर नसीब आंटी, सिस्टर नसीब आंटी कौन है आप? मतलब आप थे लास्ट क्लास में? ठीक है। सिस्टर परवीन आप थे लास्ट क्लास में? सिस्टर रूही तबस्सुम? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी, जुबान के कितने हिस्से होते हैं? जुबान टंग, टंगी है ना जुबान, तो 4 हिस्से होते हैं उसके। क्या क्या है? डीपेस्ट पार्ट होता है अक्साउल हलक, सॉरी अक्साउल लिसान, मिडिल पार्ट को कहते हैं वसतुल लिसान, 2 साइड्स के उसको कहते हैं हफतुल लिसान, टिप ऑफ द टंग को कहते हैं तरफुल लिसान। जी ठीक है। उससे कौन से हरूफ निकलते हैं? एक सेकेंड। हाफतुल लिसान किसे कहते हैं? यानी हाफतुल लिसान से कौन से हरूफ निकलते हैं? हाफतुल लिसान, हाफतुल मतलब साइड्स, एक हुरूफ अदा होती है जो होता है ज़ौद। दौद, दौद पढ़ेंगे। दौद ज़ौद, नहीं, ज़ो नहीं, दौद। ज़ौद। जुबान की जो करवट है, आप ऊपर या नीचे, दाएं या बाएं, 5 दाढ़ों को लगाइए। जी, कहीं पर भी 5 दाढ़ों को लगाइए, ऊपर या नीचे, दाएं या बाएं, कहीं पर भी। जब आपकी आवाज कैसी आएगी देखिए। दौद। ज़ौद। लग रही है असल आपकी जुबान? जी हाँ, दौद। ज़ौद। जी ठीक है। और तरफुल लिसान से कौन से हुरूफ अदा होते हैं? सिस्टर रूही तबस्सुम आप ही तरफुल बताइए। लिसान, जी तरफुल होता है टिप, टिप यानी नहीं, लाम, रॉ, नून। हम्म जबान की जो टिप है वो तालू को लगने, सामने के जो दाढ़ होते हैं तालू को लगने से अदा होती है। जी लाम, ठीक नून, रॉ। जी ठीक है। सिस्टर अजना कशफ आप थे लास्ट क्लास में? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रैक्टिस किए हैं? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बरकल्लाह। हाँ, तो क़ाफ और काफ कौन से हुरूफ हैं? क़ाफ और काफ कौन से हुरूफ है, कहाँ से अदा होते हैं? बोलिए। जी, ये हुर्फे लहतिया है जी और ये जुबान की जड़ जब ऊपर के तालु से लगती है तो क़ाफ अदा होता है। जी जुबान की जड़ के बाजुक से हम करेंगे तो काफ अदा होता है। ठीक है। और एक सेकेंड। जीम शीन या क्या है? जीम शीन शजर में या। हुर्फे शजरी है। ये पूरा सेटअप बॉक्स के साथ
सिस्टर अजना, जी मैम। आप अपना माइक खोलिए। जी मैम। हाँ, तो अब बोलिए, जीम शीन या कौन से हरूफ है, इसका मखरज क्या है? जी मैम, हुर्फे शजरिया है मैम ये, हाँ, और ये जुबान की दरमियानी हिस्से से मतलब आवाज निकलती है। जैसे कि दरमियानी, जुबान ऊपर के तालू से लगे तो जबान, तो जीम शीन या नहीं, तरफुल सॉरी, अक्साउल जी मैम। लिसान क्या कहेंगे? मिडिल पार्ट ऑफ द टंग को बताइए अरबी में। मिडिल, जी मैम एक बार फिर बोलिए। आप में से कोई और बताइए, मिडिल पार्ट ऑफ द टंग को क्या कहेंगे? अक्साउल लिसान कहेंगे क्या? अस्सलाम वालेकुम मैम। वस्तुले हलक। वसतुल लिसान। वेरी गुड जी, बारकल्लाहु फीक। हाँ, तो वसत जो है इसको अरबी में कहते हैं बीच, ठीक है। तो वसतुल हलक, हलक का दरमियानी हिस्सा, वसतुल लिसान, हलक का दरमियानी हिस्सा। तो ये जो हलक का दरमियानी हिस्सा है, ऊपर के तालु को लगने से जीम शीन या अदा होते हैं, ठीक है जी स्टाजना? मैम। जी मैम। जी ठीक है। आगे सिस्टर शाजिया। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ता दाल और ता, ता दाल ता का मखरज क्या है और इनका नाम क्या है? तो दौल तो हुर्फे नितैया है। जबान की नोक सामने वाले दांत से जब लगती है ना मैम, तब तो दाल तो ये मखरज से निकलते हैं। फिर बोलिए। टंग का जो टिप होता है वो दो दांत, जो सामने वाले दो दांत है उसके जड़ को जब लगता है, लाइक ता ता दाल तो जी ठीक है हुर्फे नितैया कहलाता है। जी, बारकल्लाह। आगे हुरूफ शफविया किसे कहेंगे? जी मैम, मुझे पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, हाँ मैम, हुर्फे शफविया में हुर्फ बताना है या मीनिंग हुर्फ भी मखारिज? बताइए, मखरज भी बताइए, ठीक। जी मैम, हुर्फे शफविया में 4 हुर्फ हैं, बा, वाउ, मीम और फा। फा वाव को होठ गोल करने से निकलता है, और बा खुश्क नहीं गीले हिस्से, होठों के गीले हिस्सों से बा निकलता है, और मीम होठों के को जब मिलाते हैं, जब खुश्क हिस्सा मिलता है तो मीम निकलता है, और फा दांतों का जब टिप जो होता है नीचे के होठ के अंदरूनी, मतलब अंदर के पार्ट को जब लगता है फा तब निकलता है। जी ठीक, बारकल्लाह फीक। जज़ाकल्लाह। और सिस्टर सिद्रा। सिस्टर सिद्रा, सिस्टर सिद्रा
आवाज आ रही है मेरी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप थे क्लास में लास्ट? यस मैम थी। जी। सवाल करूं आपसे? प्रिपेयर होकर आए? यस मैम करिए। जी ठीक है। हुरूफ हलक़ी कितने हैं, क्या क्या हैं? हुरूफ़े हलक़ी 6 हैं। हमजा, हा, आइन, गैन, ख्वा। हमजा, हा, आइन, गैन, ख्वा। कितने हुरूफ है पूरे मुकम्मल? नंबर बताइए। 6 हुरूफ है। हमजा, आप जितने बोले उसमें 6 नहीं हो गए शायद मेरे ख्याल से। हमजा, हा, आइन, गैन, ख्वा। आइन गैन, ख्वा। हमजा, हा, आइन गैन, ख्वा। कितने हुए? 5 हुए। और एक मतलब वो वैसा वाला ख्वा की तरह जो हा बनता है वो वाला भी हा होगा उसमें। हाँ, तो अब आप बताइए कि कौन से कहाँ से निकलते हैं। इसमें 3 टाइप्स है ना। हलक के कितने 3 हिस्से हो गए, तो वो 3 हिस्सों में एक अक्साए हलक होगा जिसमें हमजा और हा निकलेगा, वो गोल वाला हा। और एक को वस्त हलक होगा और एक अदना हलक होगा। वस्त हलक में वो जो ख्वा की तरह हा होता है वो हा निकलेगा और आइन आइन, और वो जो अदना हलक होगा उससे ख्वा और गैन। ठीक है, बारिकल्लाह। लेकिन निकालना कैसे आवाज? आइन है, आवाज निकलनी चाहिए। हम बोल दे रहे हैं लेकिन आवाज निकलनी, ठीक है। आइन है, आइन है, ठीक है जी, ठीक है। आगे सिस्टर सिद्रा खान। सिस्टर सिद्रा खान है आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अभी एक्चुअली ये फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास थोड़ा सा अटेंड किया था लेकिन सेकंड नहीं कर पाए थे, तो ये अभी कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस नहीं हुई आपकी मेरे ख्याल में। नहीं अभी फिलहाल नहीं हुए। ठीक है। सिस्टर तबस्सुम काजी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आप बताइए हुरूफे लिसविया क्या है, कहाँ से अदा होते हैं, इसका मखरज भी बताइए। हुरूफे लिसविया। हुरूफ लिसविया सामने के जो 2 दांत होते हैं उन हाँ उनके किनारों पे नीचे के साइड में लगने पे अदा होंगे, जैसे सा, जाल और जो। जी फिर बोलिए। सा, जा, जो, ये नहीं, 3 वो मैम आपको अलग है। आवाज देखिए, सा, जाल, वो, सा, जो, जाल, वो। सा, जाल, जो। मैम आवाज आ रही है? हाँ, सही कहा मैंने? फिर से पढ़िए। सा, सा, जा, जो। वो मोटा पन्ना है, जाल बारीक पन्ना है, ठीक है। जी ठीक है। जो, जो। ठीक है मैम। हुरूफ शजरिया किसे कहेंगे? हुरूफ शजरिया जीम, शीन और या को। ठीक है। और जॉफ किसे कहते हैं, और जॉफ से कितने हुरूफ निकलते हैं? जॉफ मैम मुंह के खाली जॉफ मतलब मुंह का खाली हिस्सा है, उससे जो हुरूफ निकलेंगे उसको कहेंगे, जैसे कि अलिफ, वाव, या। ठीक, बारिकल्लाह।
اور کوئی چھوٹے ہیں؟ میں نے آواز دیا تھا محبوب حسین، آپ نے جواب نہیں دیا. نصیب آنٹی آپ نے جواب نہیں دیا، اور پروین پارو آپ نے بھی جواب نہیں دیا. باقی کے سب سے تو میں نے سوال کیا ہے. اسما فیاض فرسٹ. سسٹر اسما فیاض آپ تھے لاسٹ کلاس میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی آواز نہیں آ رہی سسٹر اسما فیاض. جی جی میم ابھی آ رہی میم. ہاں ہاں ابھی آ رہی ہے. تو آپ بتائیے زبان کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ کلاسز اٹینڈ کیے تھے پچھلے؟ جی میم ایک کلاس اٹینڈ کی، دوسری کلاس نہیں ہوگی میم، دوسری کلاس اٹینڈ نہیں ہوگی. اچھا تو زبان کے حصے بتائیے. زبان جی کے فرسٹ کلاس میں ہو گیا تھا، سیکنڈ کلاس میں ہو گیا میم. میں صرف فرسٹ کلاس میں اٹینڈ ہوئی تھی میم. سیکنڈ کلاس میں اٹینڈ ہوئے آپ، فرسٹ میں نہیں ہوئے، یا پھر فرسٹ میں ہوئے سیکنڈ میں نہیں ہوئے؟ کون سی فرسٹ میں ہوئی تھی، فرسٹ کلاس ہو گئی تھی، سیکنڈ کلاس میں اٹینڈ نہیں ہوگی. اچھا تو جی پھر بھی فرسٹ کلاس میں بھی میرے خیال سے ہو مطلب گیا تھا زبان کے مخارج حصے. کا مخارج بولے تھے میم آپ تھوڑا ہاں بہت. وہ تو وہ تو آپ کو مطلب زبان کے حصے نہیں پتا ہے؟ اس دن زبان کے حصے بتائے تھے ہم شاید. زبان کے تین حصے ہیں میم. نہیں وسط الزبان، درمیانی حصہ. ہلو میم جی آواز آ رہی ہے میم آپ کو؟ ہاں ہاں آ رہی ہے، بولیے. زبان کے 3 حصے نہیں ہیں. جی میم اس لیے میں کلاس اٹینڈ نہیں کی تھی میم، اس لیے پریپیئر تو نہیں ہوں. مخارج تو تھوڑا بہت پریپیئر تھی مخارج کے لیے. جی اچھا ٹھیک ہے. تو ابھی دیکھیے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. آج جو ہے نا الحمدللہ مخارج جہاں سے آواز نکلنی ہے وہ تو معلوم کر لیے ہے، لیکن اب السلام علیکم میم، سوری آپ کو بیچ میں روکنے کے لیے. ایک سوال تھا، اگر آپ اجازت دے تو پوچھتی ہوں میں. واو جو ہے الجوف میں بھی آ رہا ہے اور حرف شفویہ میں بھی آ رہا ہے. تھوڑا جی سا کلیریفیکیشن اگر ملتا تو اس کو دونوں میں بھی اس کا مخارج دونوں کیسے؟ نہیں ویسا نہیں ہے. وہ جوف منہ کے کھلے حصے سے ادا ہوتا ہے لیکن ہونٹوں پر رکتا ہے نا واو. تو اس جی ٹھیک ہے، مطلب جوف صرف منہ کا کھلا حصہ ہے، اس کا کوئی مطلب آپ وہ نہیں لیجیے. الف جی ہے، الف یا واو جوف دہن ہے، لیکن مطلب ویسا نہیں ہے. مخارج الگ ہے، اس کا مخرج الگ ہے. پھر با فا واو میم یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف میں اصل اس کا شمار وہاں پر ہوگا. ٹھیک ہے، جب وہ کسی اور سے ملا کر پڑھا جاتا ہے تو جب اس وقت اس کا کیا بولوں کھلے حصے سے ادا ہوتا ہے. حمزہ واو پیش او جب ہم پڑھیں گے اس وقت، ٹھیک ہے، جی جی جزم کے ساتھ جب آئے گا تو اس وجہ سے اسے مطلب جوف میں بھی لکھا گیا. جی میم جی جزاک اللہ خیر. آمین. تو دیکھیے اب ہم ایک ساتھ پورے حروف ہجا پڑھیں گے مخرج کے ساتھ. ٹھیک ہے، الف الف الف
ये मुंह के खुले हिस्से से अदा होता है। बा, बा का मखरज क्या था? होंठों से अदा होता है, और होंठों के खुश्क हिस्से से या गीले हिस्से से, बताइए। गीले हिस्से से। जी, बा, बा। ता, ता का मखरज क्या है? और ता को बारीक पढ़ेंगे। ता, ता का मखरज जुबान की नोक ऊपर के दांतों के अंदरूनी हिस्से को लगेगी। ता, फ, फ, फ जुबान की नोक ऊपर नीचे दांतों के किनारों को लगेगी। फ, फ, फ। जीम, जीम क्या है? जीम का मखरज जुबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर तालु को लगेगा। जीम, है, है, है मखरज अच्छा लेंगे। है का मखरज क्या है? हलक का दरमियानी हिस्सा यानी वसतुल हलक से अदा होता है। खो, खो ये क्या है? अदनाए हलक से अदा होगा यानी हलक का इब्तिदाई हिस्सा। खो, दाल, दाल, दाल का मखरज क्या है? जो ता का मखरज है वही दाल का, यानी जुबान की नोक ऊपर के दांतों के अंदरूनी हिस्से को लगने से अदा होगी। फिर वैल, वैल, वैल यानी जुबान का जुबान की नोक यानी तर्फुल लिसान ऊपर नीचे दांतों के किनारों को लगने से अदा होगी। ये हुरूफ लिसविया होगा। और उसके बाद है रा, रा तर्फुल लिसान, हुरूफ तर्फिया तर्फुल लिसान से अदा होगी, यानी जुबान का टिप ऑफ द टंग ऊपर तालु से लगेगी। लाम नून रा का मखरज पढ़े ना, उसी तरह रा, रा। ज़ा, 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 ज़ा का मखरज क्या है बताइए? जुबान की नोक को सामने वाले दो दांतों के किनारे पे लगाने से अदा होगा। जा, नहीं नहीं, वो जाल है, वो जाल है। सॉरी सॉरी, जा जो है जुबान की नोक, हाँ, हाँ जड़ में लगाने, दांतों के हाँ। जड़ों में लगाने से अदा जी, होगा। नीचे के दांतों के अंदरूनी हिस्से को जड़ में लगाएंगे और जुबान का दरमियानी कुछ हिस्सा ऊपर तालु को लगेगा। ज़, ज़ यानी जुबान का लास्ट हिस्सा ऊपर तालु को लगेगा। ज़, ज़ ठीक है। इसके बाद है सीन, सीन भी सेम, जा का जो मखरज है वही सीन का भी मखरज। सीन, सीन जुबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर तालु को लगेगा। शीन में फौद, फौद, सीन, जा और सौद का एक ही मखरज, यानी जुबान की नोक और नीचे के दांतों के अंदरूनी हिस्से यानी जड़ को लगेगी और जुबान का आखिरी हिस्सा ऊपर तालु को लगेगा, लेकिन फौद को मोटा पढ़ेंगे, सीन और जा को बारीक पढ़ेंगे। आगे है दौद, हर्फ हाफिया यानी जुबान की करवट, साइड्स ऑफ द टंग ऊपर नीचे दाएं या बाएं 5 दाढ़ों को लगने से अदा होता है। दौद, दौद, दौद। इसके बाद है त्वा, त्वा, ता और दाल का जो मखरज है वही त्वा का भी है, लेकिन त्वा को मोटा पढ़ेंगे। त्वा जुबान की नोक ऊपर के दांतों के अंदरूनी हिस्से को लगेगी, लेकिन इसको मोटा पढ़ना है। त्वा। इसके बाद है वो जुबान की नोक ऊपर नीचे दांतों के किनारों को लगेगी, लेकिन पुर पढ़ेंगे। आइन, आइन जुबान का हलक का दरमियानी हिस्सा यानी वसतुल हलक से अदा होगा। आइन, आइन। उसके बाद है गौइन, गौइन ये कौन सा मखरज है? गौइन बताइए। हलक के ऊपर वाले हिस्से से, अदनाए हलक से। जी बारकल्लाह, अदनाए हलक से अदा होगा गौइन, लेकिन गौइन को मोटा पढ़ेंगे। गौइन। इसके बाद है फा, फा होंठों से अदा होता है, हुरूफ शफविया में से है। क़फ, 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 क़फ ये क्या है? हुरूफ लहाथिया यानी जुबान की जड़। अक़साउल लिसान ऊपर तालु को लगने से अदा होगा। क़फ। इसके बाद है कैफ, उससे थोड़ा हट के नरम वाले हिस्से से कैफ अदा होगा। फिर लाम, लाम नून रा एक ही मखरज है यानी तरफुल लिसान, जुबान की नोक ऊपर तालु को लगने से अदा होगा। लाम। फिर मीम,
मीम हरूफ शफविया है, नून और लाम का मखरज सेम है, नून, वाव, वाव ये भी हरूफ शफविया है, ह और हमजा, ह हमजा ये दो क्या है, अक्साउल हलक। हाँ अक्साउल हलक यानी अक्सा हलक, हलक के आखिरी हिस्से से अदा होगा। फिर या दोनों या है, हरूफ शजरिया यानी जुबान का दरमियानी हिस्सा यानी वसतुल लिसान ऊपर तालुक को लगने से अदा होगी। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी देखिए आप लोगों को एक होमवर्क देंगे हम, जैसे मतलब ये तमाम हरूफ हिजा को आप इसका मखरज पहचानने के लिए इस पर जज़म देकर तमाम हरूफ हिजा, ठीक है, इस पर जज़म देकर इससे पहले जबर वाला हर्फ लाएंगे। ठीक है, उस पर जज़म देना है, हर हर्फ पर जज़म देके उससे पहले जबर वाला मुतहर्रिक हर्फ लाएंगे, तब आपको इसका मखरज पता चलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो मखरज पहचानने का वही तरीका है, तो उस तरीके से आप लोग होमवर्क रिटर्न वर्क कीजिए और रीड भी करके आइए। इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे, मखरज भी हम आपसे पूछेंगे और साथ साथ मखरज पहचानने का तरीके के साथ साथ हम आपको पूछेंगे इंशाल्लाह हर हर्फ के लिए। ठीक है, समझ गए होमवर्क क्या मैम होगा? अलिफ को कैसे करेंगे? अच्छा अलिफ को कैसे करेंगे, हमजा अलिफ ज़बर अ। ठीक है, जी जी जज़ाकिल्लाह खैर। आमीन भैया की। ठीक है, सबको समझ में आ गया होमवर्क? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।